We'll start. Today the last IBO 1. In the previous class, I had started block 5, unit 19, that is international business ethics. We discussed what is ethics, what do you mean by ethics, concept of ethics. We discussed about ethical dilemmas and ethical lapses. Then we discussed about the ethics and international management. That is about cultural experiences, ethical belief system, social instructions, moral standards of behavior, content of managerial dilemma, financial, legal, organizational, social, personal, and economic. Today we'll discuss about ethical issues in international trade. So what is the difference between ethical versus unethical activities in business trade? In context of international trade, what is the difference between ethical activities and unethical activities? Anyone? So ethical activities are those activities which are done according to the terms and conditions done between the two parties or in a moral ground without means hoarding or there is a uh, means adultering the product or the anything which been not in the terms and condition or whether it is quality degradation or any product which have been committed it is not been represent. You can see there is a incident in Flipkart, like we order iPhone, we get bricks or something else product, so it is not a ethical thing. What you have committed you have to do, otherwise it is non-ethical what is been seen. Okay. Anyone wants to add something? Okay. Basically, ethics are principles, values, and beliefs that helps us define what is right or wrong. In relation to international trade, we should follow certain code of conduct, the agreement between the parties, the lawful legal terms and conditions, so that we can do the business ethically. But there are some issues which are in whether it's ethical or unethical. Issues are, number one is selling your products less in demand home countries. Second, selling prohibited products in less developed products that are likely to be misused. Fourth, restrictive trade policies. Five, dumping. Six, counterfeiting. And last is grey marketing. We'll start with the first one, selling products in demand in home country. ये सिचुएशन कब आएगा? जब तुम्हारा एक प्रोडक्ट मैच्योरिटी या फेस डिक्लाइन स्टेज में आ जाएगा, जहां पे तुम्हारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में यू आर फोर्स्ड टू सेल दिस प्रोडक्ट्स इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है? व्हाट इज लाइफ साइकिल? व्हाट इज प्रोडक्ट साइकिल? which tend to जो जल्दी खराब हो जाए. What are the stages in product cycle? Economics plus C में stages in product life cycle. Introduction, growth, maturity and decline. Decline. आपका एक प्रोडक्ट हाई डिक्लाइन. म्यूट योरसेल्फ. जब एक प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है, वहां पे और जब डिमांड क्रिएट नहीं हो पाता, तो आपको फोर्स किया जाए कि लेस डेवलप कंट्रीज में वो प्रोडक्ट को बेचने के लिए. दिस टाइप इज समटाइम कंसिडर्ड एज अनएथिकल बिकॉज आपको फॉरेन कंट्रीज में प्रोडक्ट सेल के प्रॉब्लम हो सकता था. सेकेंड इज लेस प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स इन लेस डेवलप्ड मार्केट्स. In some cases, drugs and chemicals forbidden in developed countries due to their harmful effects are being sold in less developed countries. This has been justified as not necessarily exploitative. Similar arguments say in respect of many drugs and veterinary products
withdrawn from developed country markets due to their side effects. कुछ फिर आते हैं products जो likely to be misused. Products developed to be used in environment may be used incorrectly by consumers due to changed circumstances or lack of knowledge or scarcity of resources. If such misuse can be foreseen, marketing of such products is unethical. Then we have some restrictive trade policies which is adopted by certain governments. कितने जन उसको कमेंट किए अनएथिकल है, नहीं करना चाहिए. Then we have dumping. What do you mean by dumping? डंपिंग मींस अगर किसी कंट्री में कोई प्रोडक्शन एक्स्ट्रा हो गया है, एक्सेस हो गया है, तो वो उसको दूसरी कंट्री में बेजबरन का डंप कर देते हैं. Anyone else? Generally हम लोग बोलते हैं dumping is an international price discrimination in which an exporter firm sells a portion of its output in a foreign market at a very low price and remaining output at a high price in the home market. यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा जहाँ पे फॉरेन मार्केट में वो लेस प्राइस में बेचेगा और जहाँ की सेम प्रोडक्ट अपने होम मार्केट में ही सेलिंग एट हाई प्राइस. व्हाट इज काउंटरफिटिंग? Duplicate means Counter- currency duplication. Counterfeiting means duplicating the product. Or there is, for example, currency like duplicate currencies. फॉर्जरी बोल सकते हैं. इट इज इलीगल क्योंकि कितनी बार होता है काउंटरफिट गुड्स आर ऑफन मेक यूज ऑफ चीप सबस्टैंडर्ड एंड डिजीनियस कंपोनेंट्स. जहाँ पे प्रोडक्ट ठीक से बनता नहीं है, क्वालिटी अच्छी होती नहीं है, वहां पे हम लोग जहाँ चीट करते हैं उसको बोला जाएगा. देन द लास्ट पॉइंट इज ग्रे मार्केटिंग. ग्रे मार्केटिंग किसको बोलते हैं? What is grey marketing? Sir, unofficial market in goods that have not been obtained from an official supplier. Or we can say that beyond the wish of the supplier. Grey market sir. वो market है जहाँ पे goods have been manufactured by or with the consent of the brand owner, but are sold outside of the brand owner's approved distribution channel. So this is considered as illegal in case of international trade business. Now we'll get social responsibility. Social responsibility. Just a short recap. हम लोग क्या बोले थे social के बारे में? जो लास्ट क्लास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. So basically CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की तरफ में जो कंट्रीब्यूट करना चाहिए एंड जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, उसके रिलेटेड है. मोटा मोटी कंपनीज जो कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी के लिए. खाली कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं, कॉर्पोरेट नहीं, सेक्टर की इंडिविजुअल्स का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नहीं, इंडिविजुअल्स का भी है. इंडिविजुअल्स भी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं. हाँ, एवरीवन. हाँ, बेसिकली जब हम लोग डील करते हैं सोशल से, वी से दैट वो एक एथिकल थ्योरी है इन विच इंडिविजुअल्स आर अकाउंटेबल फॉर फिलिंग द सिविक ड्यूटी एंड इंडिविजुअल मस्ट बेनिफिट द होल सोसाइटी. उसी तरह कॉर्पोरेट सेक्टर्स का भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सीएसआर माध्यम से कुछ परसेंटेज ऑफ देयर प्रॉफिट स्पेंड करते हैं ऑन सोशल एक्टिविटीज. नाउ इन रिलेशन टू इंटरनेशनल बिजनेस, व्हाट आर द थिंग्स दे शुड कंसिडर? पहला इंटरनेशनल एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. दूसरा इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन राइट्स, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. स्टार्टिंग विथ क्या बिजनेस प्रोसेस का एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है?
जैसा कि सर उड़ीसा का एग्जांपल लेने से होएगा, जैसे उड़ीसा में कोल ज़्यादा है तो बहुत सारे कंपनीज आते हैं यहाँ पर कोल माइनिंग करने के लिए, लेकिन वो एक्सप्लॉइट कर देते हैं, मैंने जितना आपका टाई अप हुआ रहेगा या एग्रीमेंट हुआ रहे उससे ज़्यादा कर देते हैं। जैसा देखा गया है कि रिलायंस इंडस्ट्री एक ऑयल माइनिंग कर रहा था, तो उसको बोला गया था कुछ सम क्वांटम ऑफ आउटपुट वो प्रोडक्ट करेगा, लेकिन उससे वो ज़्यादा कर दिया, जिसके लिए अभी केस चल रहा है, डिसीजन पेंडिंग है। जो नेचुरल रिसोर्सेस को मैंने एक हद तक करना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा हो जाता है। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। उसके बाद आता है तुम्हारा जब फैक्ट्री सेटअप, वी हैव रिस्पांसिबिलिटी। नो, आज जब हम लोग कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, फैक्ट्री सेटअप करते हैं, उनका भी कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, क्राइटेरिया है दैट शुड फुल। अब तो मन इच्छा कहीं पे भी फैक्ट्री नहीं बिठा सकते हो, बहुत से सेटअप के लिए। फॉर एग्जांपल पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल इफेक्ट होता है, पब्लिक लिविंग देयर नियर बाय एरियाज में जो रहते हैं वहां पे उनको इफेक्ट होता है। तो वहां पे हम लोग ध्यान रखना चाहिए कि वी आर आल्सो टुवर्ड्स द सोसाइटी ऑल्सो। जब भी हम फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम, अपना पोल्यूशन का तरीका, सब जो लाइफ हैजर्ड्स हैं उसके हिसाब से हम लोग कितने प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए देखना पड़ता है। हमारा ह्यूमन राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें क्या कंसिडर करेंगे? ह्यूमन राइट्स सर, ह्यूमन जैसा राइट्स, ये लेबर रिलेटेड हो गया। जैसा उन लोग को कम दरमा देना, लोअर सैलरी, या उनको ज्यादा टाइम खटा माने उनको वर्क में डालने के लिए, और उनका कोई नॉन मॉनिटरी बेनिफिट जैसा इंश्योरेंस वगैरह हो गया वो नहीं कराना, या फिर कुछ क्वार्टर्स अलॉट करना जहाँ पर वर्कर रह सके, तो वो अगर नहीं हो तो वो एक ह्यूमन राइट एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। सबसे आई स्टार्ट चेंबर दैट कंपनीज को कोशिश करें लेबर ना करें। सेकेंड, इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे। आप जैसे सेम अगर लोग हैं तो पेमेंट दें। अगर एम्प्लॉय अच्छा काम कर उसको मोटिवेट करें। कैश बेनिफिट्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स दोनों अवेलेबल होने चाहिए ताकि एक एम्प्लॉय अपना काम छोड़ के ना जाए। प्रॉपर ट्रेनिंग उनको देना चाहिए ताकि वो काम सीखें और क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएं। व्हाट यू मीन बाय फ्रिंज बेनिफिट्स, वो क्या होता है? फ्रिंज बेनिफिट वो होता है जो आपका नॉन व्हाट आर मॉनिटरी फ्रिंज होता है। बेनिफिट्स? जो नॉन मॉनिटरी बेनिफिट होता है, जैसा कि आपका इंश्योरेंस हो गया, चाइल्ड का जो एजुकेशन होता है उसका एक मैंने जैसा भी टाटा ने स्कूल बना के दिया हुआ है, तो टाटा के एम्प्लॉय भी उसमें एम्प्लॉय बच्चे लोग पढ़ा सकते हैं। क्वार्टर्स बना के देना, या फिर कुछ इंसेंटिव, नॉन जैसा टूर जाते हैं, या जैसा बैंकों में जैसे होता है कि आर्मी मेंस को कैंटीन में डिस्काउंटेड रेट्स पे सब आइटम्स अवेलेबल होती हैं। Akash, you want to add something? What नो mean सर। by fringe benefits? अब एक्चुअली ये क्या नहीं टॉपिक के पढ़े, बारे नहीं में हो ज़्यादा मेरे प्लस को प्लस नहीं। में हाँ था? सर, इस ये वाला नहीं पढ़ता थोड़ा। और anyone else fringe benefits में कुछ ऐड करना चाहेंगे? So medical facility. यानी these are the facilities given by the employer to the employees to safeguard interest। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स इन लोगों ने ऑलरेडी कह चुका है। रहने के लिए जगह, सब्सिडाइज फूड, एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द वर्कर्स, मेडिकल फैसिलिटीज एक्सेट्रा। लास्ट में आएगा हमारा इक्विटी। इसमें क्या इंक्लूड करेंगे? इकोनॉमिक to economic development से पैसा इन्वॉल्व हो in terms of exchange, will it affect the country? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। Will the money, okay, will the money
involved in case of international trade will affect the economy of the country? Am I audible? Hello? हेलो सर अभी सुनाई दे रहा है। दे रहे तो राइट। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को मालूम है कि व्हेन वी डू बिजनेस इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट फॉरेन करेंसी इज इन्वॉल्व which directly or indirectly affect the economic situation in a country. We should ensure that ये जो economic benefit है to the region from which purchase came and the region in which it is marketed. हम लोग का economic responsibility है, we should ensure that economic benefit दोनों regions को मिले जहां से purchase हो रहा है, जहां पे sell हो रहा है, so that both the countries can develop at a time. To sum up, ethics refers to the closeness of managerial decisions and actions with codes of moral standards that try to distinguish right from wrong. Ethical decision making is viewed differently because people from different cultures analyze the ethical dilemmas differently. At the heart of analysis of such dilemmas is the culture's moral code of behavior, which is affected by cultural experiences, ethical belief systems, and economic and social situations. Culture's ethics system of belief includes Altarian, deontology, eternal law, distributive justice, and personal liberty. Besides ethics, social responsibility of business is another important area of concern for the international marketer. Organizations have also obligations to the society beyond pursuing organizational goals and should take actions that benefit society as well. उसका कैटेगरीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ कहाँ पे हम लोग को इंक्लूड करना चाहिए. द मेजर ग्रुप इंक्लूड्स कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, यूनियन, सप्लायर्स, कंपिटिटर्स, लेंडर्स, शेयर होल्डर्स, ओनर्स, गवर्नमेंट्स, एक्सेट्रा. विद दिस वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, जो तुम लोग मुझसे बेटर जानते होगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, और वी से दैट ई कॉमर्स. विल स्टार्ट वन बाय वन. व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स? वो क्या होता है, कैसे बेनिफिट होता है हम लोग को? बोलो, एनीवन? Buying and selling of goods through electronic media or social to the society. और कोई? और कुछ ऐड करना है? एनीथिंग? Selling a goods through a electronic way or a print media or a digitally, like now the everything has been available online only, whether it is groceries to clothes to medical equipment, and most of the thing we are getting our classes online only instead of the traditional classes. This is because of COVID-19. Yeah. Okay. Shweta, you want to add something? So buying and selling of goods through internet. Okay. उसमें 4 फॉर्म्स होते हैं, क्या क्या होते हैं? Sir, Forms of- B2B. Yes. Sir, B2B, B2C, C2C, And C2B. yes, sir. E-commerce is the buying and selling of goods and services, or the transmitting of funds or data over an electronic network, basically through internet. These business transactions occur either as business to business, business to consumer, consumer to consumer, or consumer to business.
इसमें मेन एक्टिविटीज क्या है? व्हाट आर द मेन एक्टिविटीज ऑफ ई कॉमर्स? selling of goods and ठीक है, पहला services गुड्स आएगा। विद द and then हेल्प ऑफ डिफरेंट services वेबसाइट्स। हाँ, और सर्विसेज भी है यस, गुड्स एंड सर्विसेज। एंड एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है। विद द हेल्प ऑफ दिस वी क्रिएट एम्प्लॉयबिलिटी, जहाँ पे हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को ऑनलाइन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट्स एंड मोबाइल ऐप्स, जहाँ पे इंटरनेट यूज होता है। इन वेरियस इंटरनेट सर्विसेज हैं। Easy to use. व्हाट? Easy Yes, to easy use. to use. Basically, the main important benefits are, पहला है competitive advantage through innovative marketing strategies, जैसे मसूद ने अभी कहा। Second है mass customization through online interaction with the customers, global reach even for small business houses, efficient market research, cost reduction in business operations through efficient links with the supplier and strategic allies, multimedia presentation of product, company and marketing information. Tell me one example how marketing is going to help with the, or marketing helps, or you do marketing with the help of electronic commerce, e-commerce. क्या करने से क्या करते हैं? सर अगर मार्केटिंग सर जैसे अभी नॉर्मली YouTube आप चलाएंगे तो उसमें बहुत सारे एड्स आते हैं, जैसे मोबाइल फोन्स के एड्स आते हैं। तो नॉर्मली तो अब YouTube हर 10 में से 9 आदमी पकड़ते ही चलाते ही हैं। तो उस तरह से मार्केटिंग हेल्प करता है। अभी जैसे रेडमी का फोन चला, ये एक मेन कारण था रेडमी का फोन चलने का। उस टाइम तक यूट्यूब इतना बढ़ गया था, यूट्यूब और सोशल मीडिया इतना बढ़ गए थे तो उनमें रेडमी ने एड डालने लग गया, और उसके बाद इतना सस्ता फोन समझ के लोग खरीदने लगे उसको, इसीलिए वो अभी वो चल marketing पाया। they try to create demand. Yes. और कोई मार्केटिंग कैसे हेल्प कर रहा है ई कॉमर्स के थ्रू? सर मार्केटिंग अब दे सकते हो, जैसा बैंक का एग्जांपल देना है, जैसा कोई से भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो जो भी एम्प्लॉयज होता है आजकल उनके वो व्हाट्सएप में वो अपडेट दे दे कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्रेडिट कार्ड का ये फैसिलिटी है। तो नया और प्रोडक्ट भी लॉन्च हुआ है। हाँ बोलो। हाँ, नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। फिर हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, जैसा आजकल मेडिसिन दुकान बोले हैं कि आप व्हाट्सएप में हमको ऑर्डर दे दो, चाहे वो ग्रोसरी दुकान हो वो भी बोल रहे हैं व्हाट्सएप में। जियो यही व्हाट्सएप के साथ, मैंने फेसबुक के साथ टाई अप अभी किया हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट आया हुआ है, एक प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट करे कि घर बैठे हम लोग को पता चल जाए कि कहाँ पर कौन से स्टोर में कितना क्या स्टॉक है, कितना प्राइस है, कितना अवेलेबिलिटी है। और ये जो मार्केटिंग बन रहा है, जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो अपना परफेक्ट कंपटीशन का जो है, तो वो कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पुश हो रहा है। कहना आगे में इनपरफेक्ट कंपटीशन था तो वहाँ मालूम नहीं होता था रेट क्या है, प्राइस क्या है, कितना क्वांटिटी क्या कैसा है। अब यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। चाहे आप फ्लिपकार्ट में वो रेट देख रहे हो तो वो शायद अमेजन में कम है या फिर ज्यादा है, तो एक हेल्पफुल इंफॉर्मेशन होता है बायर और सेलर के बीच में। I'll start with one example. जब ई कॉमर्स स्टार्ट हुआ, जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं, दे गॉट ऑल इंफॉर्मेशन एट द डोर स्टेप। उनको घूमना नहीं पड़ा, डिफरेंट शॉप्स में कंपेयर नहीं करना पड़ा, घर बैठे सारा इंफॉर्मेशन, सारा कंपैरिजन वो कर पाते थे घर बैठे, एंड कुड मेक अ डिसीजन। जैसे राइटली ही सेड अबाउट द बैंक्स, बैंक में एक नया प्रोडक्ट बाद में लॉन्च होता है, सबसे पहले ईमेल आ जाता है उसके कस्टमर के पास कि ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ये सर्विसेज अवेलेबल है, आप ये इंश्योरेंस करवा लीजिए, आप ये रिकरिंग डिपॉजिट करवाइए, ये रिटर्न्स हैं। उसी तरह कंपनीज हैं, सपोज आपको एक प्रोडक्ट खरीदना है, आप उस कैटेगरी के प्रोडक्ट देखोगे कितने डिफरेंट कंपनीज मार्केट कर रहे हैं ऑन इंटरनेट। यू विल टेक आउट द डाटा, कंपेयर देम एंड यू कैन गो फॉर योर चॉइस। आप खरीद सकते हो। आजकल ऑनलाइन पेमेंट मोड है, कैश ऑन डिलीवरी है, सामान घर तक पहुंच जाता है। दिस इज ऑल बिकॉज द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और ई कॉमर्स और इंटरनेट सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग। जितने भी स्मॉल बिजनेस हाउसेज हो, मीडियम हो, लार्ज बिजनेस हाउसेज हो, दे आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दिस। थ्रू इंटरनेट दे कैन इंक्रीज द बिजनेस। बेसिकली इंटरनेट में हम लोग क्या क्या और प्रोवाइड कर सकते हैं? इट एक्ट्स एज अ सर्च इंजिन। जितना डाटा स्टोर्ड है, जितना डाटा सबका वर्ल्ड ओवरऑल वर्ल्ड में है, यू कैन गेट थ्रू इंटरनेट। एक्सचेंज योर ईमेल,
कमर्शियल सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो जो फ्रीली अवेलेबल है, जो अवेलेबल है. You can Online search your classes. online classes, search databases on millions of topics. Google में मारोगे लाइन से लिस्ट आ जाएगा within fraction of seconds. Receive, transmit data, program files, video conferencing. Libraries available हैं आज की डेट में. You can search different libraries, buy sell products, conduct market surveys, conduct test marketing, distribute electronic publications, provide customer support. आज की डेट पे रिसर्च के लिए बहुत काम आ रहा है. जो रिसर्चर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, वो अपना रिसर्च वर्क भी आजकल बैठ के ऑनलाइन करते हैं. सर Instead of इवन going- ऑडियो बुक बोल के अभी नया स्टार्ट हुआ है, जो हेल्प करता है सब डिफरेंट बुक्स रीड करने में, अगर किसी का हॉबी होता है तो. And believe me, because of this COVID-19, most of these जो सीनियर एज ग्रुप के लोग भी हैं, they have started using laptops and computers और अपने आप को acquaint कर रहे हैं. How to deal with it, how to purchase goods, how to teach, how to do research work. So basically अभी हम लोग का helping hand at this situation is only this one laptop or computer desktop, जो हम लोग को सारा डाटा at one place provide कर रहा है. Because stay home, stay safe is the only logic, only concept behind this lockdown. घर में रहिए, लेकिन वहाँ काम नहीं रुकना चाहिए. आप थ्रू इंटरनेट काम कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, पढ़ सकते हो, अपना रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो. यू कैन राइट डाउन योर आंसर्स, यू कैन गिव असाइनमेंट्स, यू कैन गिव ऑनलाइन टेस्ट, एग्जामिनेशंस है, यू कैन अटेंड सेमिनार्स एक्सेट्रा. तो बहुत कम समय में और बहुत अच्छा बेनिफिट हम लोग को मिल सकता है इफ यू टेक द प्रॉपर यूज ऑफ फैसिलिटी अवेलेबल. अब बेसिकली इंटरनेट सर्विसेज में वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूड होगा, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है, असेसिंग एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेटिंग, टेलीवर्किंग, ट्रांजैक्टिंग बिजनेस, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज एक्सेट्रा. सर शेयर ट्रेडिंग भी इसमें आ जाएगा? हाँ, सब आएगा. ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग करते हैं आजकल. दे हैव स्टार्टेड. इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है, यू कैन ट्रांसमिट डाटा एक्सेट्रा. बिजनेस इश्यूज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में इंक्लूड होगा नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस, टेक्नोलॉजी, रेगुलेशंस, पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिकल इश्यूज, encryption, security of data and information, multicultural issues, etc. The potential for international trade using electronic channels in the wake of the explosive growth of the internet with its web component has drawn the attention of both the developing and developed nations. Information is the key to trade efficiency. Kitna we are far-reaching plans to implement an initiative for global information infrastructure through structured world network of trade points. As these plans take shape, businesses all over the world will have access to accurate and timely information on all trade-related activities and services. क्योंकि हम लोग का सब्जेक्ट खाली ट्रेड रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड है, तो जितना भी पॉइंट्स में पढ़ रहा हूँ सब बिजनेस रिलेटेड बताए गए, जबकि आज की डेट में बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन सब इंक्लूड हो रहा है. It will provide an impetus on the growth of new markets, avoidance of production and delivery delays, and cost savings through efficient information system will enable business to operate more efficiently. Developing nations have an opportunity to participate in electronic commerce individually and as a consortium. It is also a rare opportunity to catch up with the developed nations as most of them have just started building the infrastructure for electronic commerce. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया है कि आगे ट्रेडिशनल टीचिंग में सब इन्वॉल्व थे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सिचुएशन अब आगे ऑनलाइन टीचिंग. जिनको ऑपरेट नहीं करना आता था वो सीख रहे हैं, बिकॉज और सेकंड ऑप्शन नहीं है हमारे पास. वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स. ट्रेडिशनल मेथड बाय फार इज द बेस्ट, बट एट दिस सिचुएशन वी कैन नॉट पुट द फ्यूचर एट स्टेक ऑफ द स्टूडेंट्स. तो वहां पे वी हैव टू डेवलप आवरसेल्व्स, जहाँ पे हम लोग नया टेक्निक सीख रहे हैं. वी आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस. हम लोग नए तरीका ढूंढ रहे हैं कैसे हम लोग असाइनमेंट्स ले लें, कैसे एग्जाम्स कंडक्ट कर लें ताकि प्रमोशन इजी हो जाए. अभी हाल में तुम लोग सुने होंगे सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, पीजी सेकेंड सेमेस्टर सब कैंसिल किया गया है, लेकिन वहां पे एक क्लॉज इंक्लूड किया है, ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट हैज टू बी टेकन बाय द यूनिवर्सिटीज टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन विच इज येट टू बी क्लियर्ड. तो एट दिस सिचुएशन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू टेक आउट टेक्निक्स सो दैट बच्चों का कोई भी पीरियड 3 महीना 6 महीना हैम्पर ना हो, क्योंकि आगे जाके फिर
सर्टिफिकेट मिलने में उनको प्रॉब्लम होगा, और जहाँ पे वो आगे कुछ भी करना चाहे वहाँ दिक्कत होगा. So basically these are the activities जहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं because of this situation how to grow in terms of self, students benefit and benefit of the organization as a whole. यहाँ पे include आ रहा है developing nations have an opportunity to participate in electronic commerce. It is also a rare opportunity to catch up with the developed nations as most of them have just started building the infrastructure for electronic commerce. The information technology infrastructure is a shareable resource. Planning jointly for the region and coordinating with the help eliminate duplication, overlapping, redundancy, and save time, effort, and money. Anything कोई ऐड करना चाहेगा ई-कॉमर्स में? इस सब के बारे में यू ऑलरेडी नो व्हाट इज इंटरनेट, www क्या है, कैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं, how you can save time, money, etc. सर इंटरनेट जितना अच्छा है उतना उसका साइड इफेक्ट भी है, जैसा कि आज के डेट में फ्रॉड सारा होता वो है. तो है. देखो सबका प्रोज एंड कॉन्स है. अब जैसे रिसेंटली मैं एक पढ़ा था जूम ऐप के बारे में कि कितने जन उसको बोले इट्स नॉट सिक्योर्ड, बट कुछ दिनों बाद उसका फिर गाइडलाइंस इशू हुआ कि इफ यू डू दिस थिंग्स योर डाटा विल बी सिक्योर्ड. ऐसा कुछ नहीं है कि यू कैन नॉट यूज जूम ऐप. उसी तरह सब चीज का प्रोज एंड कॉन्स है. इफ यू टेक गुड थिंग्स यू विल गेट गुड रिजल्ट. अगर इफ यू गो बाय बैड थिंग्स ऑब्वियसली रिजल्ट विल बी बैड. Now we'll go through the assignment questions. किसी के पास असाइनमेंट है तो थोड़ा स्क्रीन में शेयर कर दो ताकि मैं देख लूं. कोई टॉपिक्स वगैरह रह गया तो वी कैन डिस्कस, वी हैव टाइम. हेलो सर, मॉडर्न थ्योरी ट्रेड बोलो. के बारे में थोड़ा बता दीजिए. ओके राइट. सर असाइनमेंट्स क्वेश्चन दिख पा रहे हैं? हाँ मैं उसको जूम करके देख लूंगा. ठीक है मैं देखता हूँ. हेलो, दिख रहे हैं असाइनमेंट क्वेश्चंस? हाँ दिख रहा है. सर इसमें जो ये सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द रैशनल ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको हम मतलब इजी लैंग्वेज में कैसे प्रेजेंट करेंगे? जैसे सर ने भी लास्ट टाइम कहा था यू डिड नॉट कॉपी एवरीथिंग फ्रॉम द बुक डायरेक्टली. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ अदर बुक्स. गूगल कर सकते हो. इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट के अपने वर्ड्स में लिखोगे. सबसे पहले एक्सप्लेन करोगे टेक्नोलॉजी क्या है, ऑब्जेक्टिव रैशनल माने ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई वी शुड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, कैसे हेल्प करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में. उसके बाद नॉन इक्विटी फॉर्म्स में चले जाओगे. सर मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड थोड़ा बता दीजिए. हाँ मैं तो असाइनमेंट क्वेश्चन देख रहा हूँ. देखने के बाद विल डिस्कस मॉडर्न थ्योरी. ओके सर. मैं खाली देख रहा हूँ असाइनमेंट कुछ रह तो नहीं गया हम लोग का. हैव यू स्टार्टेड मार्किंग द आंसर्स जिसके पास मटेरियल अवेलेबल है? यस सर. सारे आंसर्स मिल गए? ऑलमोस्ट. हाँ सर, मोटा मोटी सारा दिया हुआ है. हाँ दिया है ना. हाँ हो सर. गया सर. डाटा थोड़ा बदलना पड़ता है, अपने से ऐड हाँ. करना पड़ता है. हाँ यू डोंट हैव अ चॉइस बिकॉज ये बहुत पुराना बुक है. 2005-6 का डाटा दिया है तो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन परसेंटेज फिगर्स देने के लिए यू हैव टू रेफर गूगल. थोड़ा गूगल देखोगे. ओके अगर असाइनमेंट में कोई डाउट नहीं है तो वी कैन स्टार्ट विथ मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड.
क्लासिकल थ्योरी क्या था? एनीवन? क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड? क्लासिकल थ्योरी जब वो डिस्कस किया था, इट टुक इनटू कंसिडरेशन वन फैक्टर, दैट इज लेबर। लेबर को वो कंसिडर करके वो ट्रेड थ्योरी एक्सप्लेन किया था। द क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। वहां पे वन फैक्टर कंसिडर हुआ था, दैट इज लेबर। द मेन कंसंट्रेशन इट एट्रीब्यूट्स द डिफरेंस इन द कंपेटिटिव कॉस्ट टू डिफरेंस इन द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स इन टू कंट्रीज। जहां की मॉडर्न थ्योरी कंसिडर टू फैक्टर्स, दैट इज लेबर एंड कैपिटल। The modern theory explains the phenomena of international trade on the basis of general theory of value. It presents a multi-factor, that is labor and capital model. It attributes the difference in competitive cost to the difference in factor endowments in the two countries. यानी जब वो कंपेयर कर रहा है बिटवीन टू कंट्रीज, वो कैपिटल और लेबर दोनों को कंसिडर करके कर रहा है। मॉडर्न थ्योरी टू फैक्टर्स कंसिडर कर रहा है, मनी कॉस्ट के ऊपर है, इंपॉर्टेंस ज्यादा लेबर को नहीं देके कैपिटल को भी दे रहा है, एंड फाइंड आउट करें व्हाट इज द रीजंस ऑफ डिफरेंस और बेनिफिट्स बिटवीन बोथ द कंट्रीज। और कुछ डाउट्स है, कुछ जानना है और? हेलो सर। हाँ बोलो। सर यूनिट 16 का थोड़ा डाउट है अभी। यूनिट 16। हाँ बोलो, क्या है? सर वो उस टाइम मैं क्लास में नहीं थी तो इसीलिए। You go to the, माने you can search recorded class है। You want me to teach again unit 16? नहीं, वो रोल ऑफ आईसीसी इन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन। ठीक है, हम लोग डिस्कस किए, जस्ट शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। विल स्टार्ट विथ आकाश। आकाश, हम लोग डिस्कस किए थे, बोलो व्हाट इज आर्बिट्रेशन? आकाश? यस सर। हाँ बोलो, आर्बिट्रेशन हम लोग डिस्कस किए थे। कॉल करना भूल गया सर। हाँ करो। एनीवन? सर हिमानी? आर्बिट्रेशन बोलो। हाँ बोलो मसूद, बोलो, नो प्रॉब्लम। आर्बिट्रेशन सर जो बेसिकली कोर्ट के बाहर किया जाता है, ये दो पार्टीज होते हैं और एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है जो दोनों के बीच में मीडिएट करके एक सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है इन द जनरल मीनिंग। हाँ, और लिटिगेशन क्या होता है? लिटिगेशन में सर वही थ्री पार्टीज होते हैं। कुछ प्रॉब्लम होता है जो लिटिगेंट्स अपील करता है कोर्ट में बेसिकली। यस, पहला डिफरेंस है, आर्बिट्रेशन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट होता है, जबकि लिटिगेशन में वी गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। आर्बिट्रेशन इज अ रिटन वॉलंटरी एग्रीमेंट टू सबमिट प्रेजेंट और फ्यूचर डिस्प्यूट्स और डिफरेंसेस फॉर फाइनल एंड बाइंडिंग डिटर्मिनेशन, जहां पे हम लोग एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट करते हैं, अपने डिस्प्यूट के बारे में बताते हैं और डिसीजन मेकिंग होता है। जबकि लिटिगेशन में यू हैव टू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, वहां पे तुम अपना केस को रखोगे एंड वहां पे कोर्ट डिसाइड करेगा अबाउट योर रिजल्ट। मेन डिसएडवांटेज ऑफ लिटिगेशन इज इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड यू हैव टू स्पेंड मोर मनी, इट इज कॉस्टली। तो कितने बार होता है इन इंटरनेशनल ट्रेड, दे ट्राई टू सेटल आउट ऑफ कोर्ट, थर्ड पार्टी को अपॉइंट करके दे गो बाय आर्बिट्रेशन एंड सेटल द डिस्प्यूट्स। देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ कोर्ट लिटिगेशन। कुछ एडवांटेजेस आर्बिट्रेशन का क्लियरली तुम्हारे के थ्योरी मटेरियल में दिया हुआ है, यू कैन रेफर देम। एनीथिंग एल्स जो तुम लोग चाहते हो डिस्कस करना? असाइनमेंट्स क्वेश्चन देख लो, जिसको कुछ आंसर्स नहीं मिला मुझे बोल दो, आई विल टेल यू वेयर इज द आंसर so that you can write it on your own words. सर एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा किस हिसाब से पैटर्न उसका कैसे क्या लिखना है, जैसे हम लोग बीकॉम में फॉलो कर रहे हैं तो वही वाला है या कुछ और है भी? हाँ सेम। नहीं देखो, यहाँ पे तुम लोग का एक्सप्लेनेटरी आंसर ही होंगे। लास्ट 4-5 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर देखना, किस टाइप के क्वेश्चन उन लोग देते हैं,
क्योंकि तुम लोग को पता है फर्स्ट ईयर में तुम लोग का प्रैक्टिकल पेपर है ही नहीं, सारे थ्योरी है, यू हैव टू आंसर थ्योरी. Assignments will be 30% and your term examination will be 70%. Assignments में से 30% मार्क्स लिया जाएगा और फाइनल एग्जाम्स का 70%. अग्रीगेट करके तुम लोग मार्कशीट निकलेगा. ओ सर ने पेपर में देखा है, जो क्वेश्चन पेपर आता तो वो 100 मार्क्स का आता है, जिसमें से 4 लॉन्ग हाँ. क्वेश्चन होता है. उसमें 6 लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 4 बोलता है करने के लिए. शॉर्ट नोट आता है 6, और उसमें भी से 4 करने बोल रहे हैं. जो हाँ, टोटल वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 है सर उसमें. अभी तक का टोटल 5 इयर्स या 8 इयर्स का क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ईयर में 7 तो क्वेश्चन आया था. टोटल 7 क्वेश्चंस आया था, नहीं तो 8 क्वेश्चंस आता है. और खाली एक ही उसमें से एक ही क्वेश्चन का 10 मार्क्स रहता है, बाकी सबका 5 या समथिंग ऐसा कुछ रहता है. देखो, आई एम नॉट श्योर अबाउट द क्वेश्चन पैटर्न बिकॉज लास्ट फ्यू इयर्स का तुम लोग देखने से पता चल जाएगा. वो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, लेकिन उसमें से 70% लिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल तुम 100 में से 70 रखे हो, तो उसका 70% यानी 49 मार्क्स कंसिडर किया जाएगा फॉर योर टर्म एंड एग्जामिनेशन. And बाकी 30% will be taken from assignments. I think sir can answer better.